Hello everyone. Today we shall start our new chapter number 8, ratio and proportion. In our previous lecture we had completed our 7th chapter, that is linear equations. Now we shall see ratio and proportion. First I'll explain you some theory related to the ratio and then we will move to the exercise number 8a. Okay? What is ratio? The ratio of two quantities of the same kind and in the same unit is the fraction that one quantity is of the other. Okay, too complicated definition is given here, so I shall explain it to you in very simple words. रेशियो क्या है? कोई भी एक क्वांटिटी ऐसी है, सॉरी टू क्वांटिटीज हैं जो सेम टू सेम यूनिट्स में आपको दी है और उनके फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया गया है, तो ये है आपका रेशियो. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपका वेट है 35 kg एंड आपके फ्रेंड का वेट दिया है आपको 45 kg. 35 kg and 45 kg units you can see. The measuring unit of weight kilograms are used in both the numbers, so the same quantity, okay, and same unit. तो 35 upon 45 इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो बाय टेकिंग आउट द HCF एंड द simplest form obtained is called the ratio. Okay, for an example, 35 and 45 फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दिया होगा, तो आप इसको क्या करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो HCF नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो HCF है 5. Okay, the HCF is 5, so the remaining numbers will be called the simplest form or the ratio. 7 upon 9 will be written as 7:9 in the form of ratio. Okay, so these 7 and 9 are called the terms of the ratio. Okay, आप ऐसे बोल सकते हो you and your friend's weight is in the ratio 7:9. आपका और आपके फ्रेंड का जो वेट का रेशियो है वो 7:9 है. 7:9 है तो इट डजंट मीन कि आपका वेट 7 है और आपके फ्रेंड का वेट 9 kg है. इट मीन्स कि 7 and 9 के साथ कोई और एक नंबर मल्टीप्लाइड है जो दोनों में कॉमन है एंड ये उनका रेशियो है. ओके, सो रेशियो बिटवीन A अपॉन B, A एंड B का रेशियो है उसको आप कैसे लिखोगे? A:B. एंड ये जो टर्म्स ऑफ रेशियो है उनके नाम मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटेसिडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. ओके, first term of the ratio is called antecedent. And the second term of the ratio is called consequent. Consequent. Okay, and it is the यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? A. तो here A is the antecedent and B is the consequent. Okay, so this is the basic information related to ratio. Now an important property, a ratio remains unchanged if both of its terms are multiplied by the same non-zero quantity. Okay, ratio है वो सिमिलर रहता है, as it is रहता है जब इनसे दोनों जो टर्म्स है या ये दोनों है 7/9, इनको 7/9 और एल्स कोई भी दूसरे नंबर भी आप सोच सकते हो, तो वो जो रेशियो के दोनों टर्म्स है उनको आप जब सेम टू सेम नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा का कोई भी और नंबर लेके मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. सी फॉर द एग्जांपल 7/9 के दोनों टर्म्स जो है उनको मैं 11/11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 77/99.
ओके, अब इसको वापस में सिंपलेस्ट फॉर्म में ये तो रेशियो फाइंड आउट करने चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, आई विल डिवाइड देम बाय 11 upon 11 and I will find out 7 upon 9 is the simplest form which was earlier already. ये earlier ये 7 upon 9 ही था. Okay, so it is proved that when you multiply both the terms of ratio by the same non-zero numbers, the ratio remains unchanged. Okay. The ratio is said to be in the simplest form if the HCF of A and B is 1. Okay? Simplest form में कब कहा जाता है रेशियो को, जब इन दोनों का A and B का मतलब जो न्यूमरेटर या तो फर्स्ट टर्म एंटेसिडेंट है, सेकंड टर्म कॉन्सेक्वेंट है, उन दोनों का HCF नंबर 1 होता है तब. Okay? Now we will move to the exercises of ratio. आपको 25 सम्स दिए हैं, यहाँ पे हम सारे 25 तो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आधे ये लेक्चर में करेंगे, आधे बाकी के लेक्चर में हम करेंगे. ठीक है. सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले आपका क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो. Question number 1, and in that first term I am doing 24 is to 40. Is to 40. So 24 upon 40. First term antecedent and second term consequent will come in the denominator. अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो HCF है वो फाइंड आउट करना है. HCF आपको फाइंड आउट करना ऑलरेडी आपके अर्लियर स्टैंडर्ड्स में आ गया होगा, तो यहाँ पे वो HCF फाइंड आउट करने की मेथड में आपको नहीं सिखाऊंगी. आई विल डायरेक्टली राइट डाउन द HCF नंबर 8 upon 8. 8 3s are 24 and 8 5s are 40. जो HCF नंबर है उससे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड 8 के टेबल में 40 कब आता है, 5s are. 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3s are. So this is the simplest form of the ratio. Okay. Next is 13.5 is to 15. 13.5 is to 15. So 13.5 and 15 in the denominator. अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया है तो आप इसको निकाल के नीचे डाल दोगे. डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको 1 एक डिजिट दिया है. 135 and 150 divided by the HCF number 15. 15 के टेबल में 135 कब आता है, तो 15 9s are. and 15 के टेबल में 150 कब आता है, 10s are. 9 upon 10 is the simplest form of the given ratio. Next, 6 integer 2 upon 3 is to 7 integer 1 upon 2. First, we will convert these mixed fractions into improper. 3 6 are 18 plus 2 will be 20. And 2 7s are 14 plus 1 will be 15. 20 upon 3 and 15 upon 2. Now, as you already know कि जब आप किसी दो फ्रैक्शनल नंबर्स को डिवाइड करते हो तब आप उसके रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और मेथड, एक और नई चीज क्या सीखनी है, जो मेन डिनोमिनेटर है उसके ऊपर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3 हियर. डिनोमिनेटर नहीं, लेकिन मेन यहाँ पे न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे मल्टीप्लाई होता है. ओके, एंड डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 15 upon 2 आपको डिनोमिनेटर में दिया है.
तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 is going to be multiplied in with 20. Okay, second term will be multiplied by the third and fourth term will be multiplied by the first. It is the rule of the maths. Okay, मैं घर के रूल्स नहीं सिखा रही हूँ, मैथ्स है ये आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आपके पास दो न्यूमरेटर्स और दो डिनोमिनेटर्स है, यहाँ पे 20 एंड 15 ऐसे दो न्यूमरेटर्स है, 3 एंड 2 ऐसे दो डिनोमिनेटर है, तो जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो दूसरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड जो सेकेंड डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 and 15 multiplied by 3. 22s are 40 and 15 3s are 45. They both will be divided by the HCF number. Sorry, 5. Okay, 5 8s are 40 and 5 9s are 45. So this is the simplest form of the ratio 6 integer 2 upon 3 to 7 integer 1 upon 2. Or else what the other method you people have is 3 and 2 का आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है वो मैं आपको सिखाती हूँ। 3 and 2 का एलसीएम होता है वो आप फाइंड आउट करो। 3 and 2 का एलसीएम है 6। ओके, और 3 6 are 18 plus 2 20 upon 3 will be multiplied by 6 and 15 upon 2 will also be multiplied by 6. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. 22s are 40 and 15 3s are 45. तो 40 and 45 का जो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म किया आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट योर टेक्स्ट बुक मेथड इज कि आप डिनोमिनेटर्स है 3 and 2 उनका एलसीएम ले लो 6, फिर आप इनका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें से इम्प्रॉपर के साथ उसका एलसीएम मल्टीप्लाई करो, जो आपको 40 and 45 नंबर्स मिल रहे हैं उनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करोगे, ठीक है। Here too you will require an HCF. ये वाली मेथड में भी आपको HCF तो चाहिए ही होगा। ओके, मेरी वाली जो मेथड मैंने आपको पहले सिखाई उसमें भी HCF तो रिक्वायर्ड है ही, और आपकी टेक्स्ट बुक की मेथड में जो दिया है वो भी HCF है, लेकिन वहां पे आपको स्टार्टिंग में एलसीएम चाहिए होगा। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। Number 4, 1/6 is to 1/9. Here we will follow the method of your textbook and we will see the method, or we will find out the LCM of 6 and 9. Okay. Number 4, 1/6 is to 1/9. Okay. LCM of 6 and 9 is equals to 18. 1/6 will be multiplied by 18 and 1/9 will be multiplied by 18. 6 1s are 6 3s are 9 1s are 9 2s are, तो 3 1s are 3 and 3 is to 2, तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया क्योंकि इनका HCF नंबर 1 के अलावा और कोई कुछ होगा नहीं, तो दिस इज द simplest form of the ratio number 4. Next, number 5, 4 is to 5 is to 9/2. See, here we will put 1 in the denominator so that we can obtain the LCM. Okay, LCM of 1
and 2 is equals to 2. 4 upon 1 will be multiplied by 2 is to 5 upon 1 will be multiplied by 2 is to 9 upon 2 will be multiplied by 2. Okay, 4 2s are 8 is to 5 2s are 10 is to 9. Okay, this is the simplest form because you cannot have any other number HCF here. यहाँ पे आपके पास HCF और कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है. ओके, 1 ही होगा इनका HCF. तो जिस रेशियो का HCF 1 होता है वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये यहाँ पे आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में. नेक्स्ट नंबर 6 आपको खुद करना है. ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करना तो आपको पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो मेथड सिखाई मैंने वही करनी है. फर्क सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कंपैरिजन के लिए कोई क्वांटिटी या तो रेशियो के लिए कोई क्वांटिटी नहीं दी थी. अब यहाँ पे आपको यूनिट्स दिए हैं, इट मीन्स कि कोई क्वांटिटी को कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, तो नंबर्स के साथ यूनिट्स भी इसमें आपको दिए हैं. 75 पैसे इज टू 2 रुपीज, सॉरी 3 रुपीज. तो यूनिट आपको जो है वो दोनों के सेम करने पड़ेंगे. इधर आप पैसे की इंफॉर्मेशन को रुपीज में कन्वर्ट करो और रुपीज की इंफॉर्मेशन जो है उसको पैसे में कन्वर्ट करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 in which number 1 we will do 75 पैसे to 3 रुपीज. ओके, 3 रुपीज है उसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो है उसका यूनिट पैसे है. ओके, 3 into 100 that will be 300 पैसे. क्यों मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया? बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. सो 3 रुपीज इज इक्वल्स टू 3 multiplied by 100 that is 300. नाउ what will we do? HCF. ओके, 75 and 300 का HCF क्या होता है? 75 जो मैंने लिखा है 1/4 1:4. ये हो गया रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 63 सेंटीमीटर्स. 63. 1 मीटर is equals to 100 सेंटीमीटर and plus 5 सेंटीमीटर्स मोर. ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट्स को पहले इक्वल करेंगे, नहीं तो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगा. 100 plus 5 will give you 105 and 63. अब आपके पास दोनों नंबर्स है तो इन दोनों का आप HCF फाइंड आउट करोगे. ओके, आई ऑलरेडी नो द HCF, सो आई राइट डायरेक्टली. जहां पे आपको कंपैरिजन की या तो रेशियो की क्वांटिटीज दी है, यूनिट्स दिए हैं, वहां पे आपको क्या केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि दोनों यूनिट्स सेम अगर नहीं दिए हैं तो दोनों को पहले सेम करना है, फिर आपको HCF फाइंड आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, नाउ नंबर 3, 1 hour 5 minutes to 45 minutes. 1 hour 5 minutes upon 45 minutes. 1 hour is equals to 60 minutes. Okay, plus 5 more minutes upon 45. 60 plus 5 will give you 65 and 40 plus 5 will give you, sorry, 45 is already there in the denominator. Now the HCF of 65 and 45 will be 5 only.
HCF डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आपको कहीं पे रफ वर्क करके HCF पहले करेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर ही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छे से राइट करेक्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर्स नंबर 4, 5 एंड 6 आपको खुद करने की ट्राई करनी है, मैंने जैसे आपको 1, 2 एंड 3 नंबर्स करके दिखाए हैं, ठीक है। Now we will move to the next question number 3. If A is to B is equals to 7/5 and B is to C is equals to 9/14, sorry 9 is to 14, find A is to C. Okay. रेशियो के 3 टर्म्स है A, B, C. उसमें से आपको A/B एंड B/C की जो इंफॉर्मेशन है वो दी है, आपको फाइंड आउट करना है C is to A और A is to C. B is to C दोनों चीज आपको दिया है. A is to B, 7 is to 5, 9 is to 14. अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है A is to C. ओके To find out A is to C, what we need to do? We will multiply these two together and numbers will be multiplied together. A upon B into B upon C is equals to 7 upon 5 into 9 upon 14. See here what I have done is, जो आपके रेशियो के जो अल्फाबेट्स आपको दिए हैं और फर्स्ट टर्म हियर द सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो वो जो अल्फाबेट्स है वो आप साथ में मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको आप साथ में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. सो B विल बी कैंसल्ड, एट द लेफ्ट हैंड साइड यू विल रिमेन और लेफ्ट विथ A upon C, and at the right hand side 7 ones are 7 and 7 twos are 14, that is 9 upon 10. Okay, A upon C is equals to 9 upon 10, तो A is to C is equals to 9 is to 10. ओके, ये आपका जो आंसर आपसे पूछा हुआ है वो मिल गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है तो सेम टू सेम 4 नंबर आपको वैसा ही करना है. Now we will move to the question number 5 directly, where A is to B is equals to 3 is to 5. Okay. Question number 5. 4 नंबर मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए दिया हुआ है. A is to B, 3 is to 5. B is to C, 10 is to 13. आपको फाइंड आउट करना है A is to B is to C is equals to dash. Okay. Now we shall start with the solution of this question number 5. What you are given, A is to B is equals to 3 is to 5 and B is to C is equals to 10 is to 13. Here you can see in the first ratio B stands for 5. Okay. And in the second ratio B is to C, B stands for 10. अब आपको 5 and 10 के बीच में रेशियो क्या है वो फाइंड आउट करना है, या तो उसको लेवल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या मेथड है वो मैं सिखाती हूँ. सो हम क्या करेंगे, B is to C, तो what will we do, we will exactly divide by 10. Okay, dividing both the terms
terms by 10. तो ये क्या हो जाएगा, b is to c is equals to 1 is to 13 upon 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 1 जा 10, ये b is to c is equals to 1 is to 13 upon 10। अब आपके पास क्या है, a upon b is 3 is to 5। यहाँ पे b जो है वो 5 आपको दिया है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों टर्म्स को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, b के लिए आपके पास 5 एंड 10 दोनों है। तो फर्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू इज 10 से डिवाइड कर दो एंड देन 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। एंड 5 is to 13 upon 2 is a b to c, okay। b to c is 5 is to 13 upon 2 and now a to b is where is the question, a to b is 3 is to 5, okay। Now you can see both the terms और both the middle terms, जो b है वहां पे दोनों में 5 आ गया है। यह है a is to b and here it is b is to c, okay। Now what will we do, we will multiply 3 is to 5 by 2 upon 2 into 2, 3 into 2 is 5 into 2 and 13 will remain as it is, 6 is to 10 is to 13, okay। Now we will move to the next question number 6, okay। थोड़ा ट्रिकी है, जहाँ पे आपको a is to b is to c फाइंड आउट करना है। तो एक से आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको दूसरा भी सेम टू सेम टाइप का है फिर भी करवा रही हूँ, ठीक है। a is to b 5 is to 6, okay। क्वेश्चन नंबर 6, a is to b is equals to 5 is to 6, b is to c is equals to 4 is to 7 and आपको फाइंड आउट करना है a is to b is to c, okay। First of all what will we do, we will keep a is to b as it is, that is 5 is to 6। you can see here b के लिए आपको यहाँ पे 6 मिला है एंड यहाँ पे आपको b के लिए 4 मिला है रेशियो में, तो आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप 10 से यहाँ पे जैसे आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे b का जो दूसरा नंबर है दैट इज 4 उसके साथ आप डिवाइड करोगे, ओके। b is to c is equals to b 6 is to 4 on 7। आपको क्या डिवाइड करना है,
4, ये b is to c। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, on dividing by 4 and then on multiplying by 6। ओके, जो यहाँ पे आपने 5 मल्टीप्लाई किया था वो अब आपको 6 मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी टेक्सचुअल मेथड है। ओके, 2 3s and 2 2s, 6 is to 21/2, ये है b is to c। a is to b 5 is to 6 है and b is to 6 6 is to 21 है। अब आप देखोगे तो दोनों में आपको b का जो नंबर है वो 6 मिल गया है। तो अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में 2 है वो आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, सो योर आंसर विल बी 10 is to 12 is to 21। a is to b multiplying by 2 on both the sides। देखो यहाँ पे आप 13/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके डिनोमिनेटर का 2 एंड मल्टीप्लिकेशन वाला 2 दोनों कट हो जाते हैं, इसलिए 13 बचता है। सेम थिंग व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 21/2 by 2, so 2 will be cancelled and 21 will remain as it is। So 10 is to 12 is to 21 is the answer। Okay, ये है आंसर आपका। Now next question number 7 we will see। Divide rupees 360 between Kunal and Mohit in the ratio 7 is to 8। कितने रुपीस आपको डिवाइड करने हैं, 360 रुपीस 360। तो कुणाल इज इक्वल्स टू, रेशियो आपको क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो गिवन, 7:8। कुणाल का जो शेयर है वो 7 है। ओके, जो पहला है नाम उसके साथ पहले नंबर का जो आपको रेशियो दिया है वो जाएगा। तो 7 + 8 विल बी 15। दोनों का आपको डिवाइड करके देना है, इससे दोनों का शेयर ऑल टुगेदर काउंट करना पड़ेगा, दैट इज 15। ओके, एंड 360, 3 5s are 3, 120s are 5 1s are and 5 24s are 7 into 24, 160 rupees। Kunal will get rupees 168। and दूसरा कौन है, मोहित। ओके, मोहित का
शेयर क्या है 8, ओके, एंड ऑल टुगेदर शेयर कितना है 15, एंड रुपीज ऑल टुगेदर कितने हमें शेयर करने हैं, दोनों के बीच में डिवाइड करने हैं 360. सो 3 5s are and 3 120s are, 5 1s are and 5 24s are, 24 8s are, 192 rupees. ओके, सी मैंने क्या किया है, जो आपको रेशियो दिया है उनके टर्म्स को आप पहले प्लस कर दो, क्योंकि आपको दोनों को शेयर देना है इसलिए. ओके, अब किसका शेयर कितना है, तो जो फर्स्ट नेम कुणाल है उसका शेयर 7 है, एंड जो मोहित है सेकंड नंबर उसका शेयर 8 है. तो जब आप मोहित के लिए मल्टीप्लिकेशन करोगे और शेयरिंग की कैलकुलेशन करोगे तब आप 8 न्यूमरेटर में लिखते हो, एंड व्हेन यू कैलकुलेट the sharing of Kunal at that time you will put 7 in the numerator, that is 7 upon 15. ओके, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब आपके पास 360 में से एक जने को 168 मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करने के लिए आप माइनस भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि रेशियो का चैप्टर है इसलिए आई विल एडवाइज यू टू गो विद द मेथड दैट आई हैव डन ऑन द बोर्ड. ओके, 192 ये माइनस क्यों किया है मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ऑल टुगेदर 360 रुपीज में से इतने अगर कुणाल को मिलेंगे तो मोहित को बाकी बचेंगे वो मिल जाएंगे, दैट इज 192. लेकिन माइनस करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे रेशियो का एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है तो आप रेशियो के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करोगे, नहीं तो आपका रॉन्ग जाएगा. नाउ नेक्स्ट नंबर इज डिवाइड रुपीज 880 बिटवीन राजन एंड कमल. In the ratio 1/5 is to 1/6. Answer number 8. Rupees 880 and the ratio is given 1/5 is to 1/6. Okay. आपको रेशियो को प्लस करना है 1/5 प्लस 1/6. टोटल तो आपको करना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, रुपीज 880 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 1s are 5 7s are 35 and 5 6 are 30, that is rupees 176. Okay, and the next one will get rupees 880 multiplied by 1/6. 6 1s are 6, 6 1s are 6, and let me do 3 2s are 6, and 2 4s are 8, 2 4s are 8, 0. This method is not going to work here. We will have to add anyhow. Okay, add करना ही पड़ेगा जो रेशियो आपको दिया है. Five and 6 is 6 plus 5/30, 11/30 ये है टोटल. ओके, अब 11/30 ये मैंने क्या किया है,
इसका जो आपको रेशियो है उसके हिसाब से उसका आपको शेयर काउंट करना है, दैट इज 30/55। तो ₹880 multiplied by 30/55, 11 5s are and 11 8s are, 5 1s are and 5 6s are, that is ₹480। ओके, 880 में से ₹480 एक इंसान को मिल गए हैं, तो बाकी कितने बचेंगे? ₹400। वो दूसरे को मिलेंगे, लेकिन 400 दूसरे को कैसे मिलेंगे वो हमें अब देखना है। ठीक है, ₹880 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 जो है वो किसका शेयर था? राजन। ओके, एंड कमल का शेयर अब हम काउंट करेंगे। ₹880 ऑल टुगेदर, उसमें से कमल का शेयर था 1/6 एंड ऑल टुगेदर शेयर है 11/30। मैंने आपको सिखाया था वो। ओके, जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो सेकेंड न्यूमरेटर के साथ, मतलब यहाँ पे 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड फर्स्ट न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय लास्ट डिनोमिनेटर, दैट इज 30/66। 11 6 are 11 8 is are 6 1s are and 6 5s are, 80 into 5, that is ₹400। Okay, Kamal will get ₹400 and Rajan will get ₹480। Divide ₹5600 between A, B and C in the ratio 1:3:4। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवाया था, सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। तीनों के रेशियोज प्लस करना है एंड देन तीनों के जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके हिसाब से उनको शेयरिंग देना है। ठीक है, तो मैं आपको आधा करवा रही हूँ, बाकी का आधा आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। A is to B is to C, 1:3:4। Okay, question number 9। ऑल टुगेदर 1 + 3 + 4 कितना होता है? 8। अब A is equals to ₹5600 multiplied by 1/8, that is ₹700। Okay, 8 1s are and 8 7s are। B ₹5600 multiplied by 3/8। ओके, ये आपको खुद करना है। सी के कितने रुपीस होंगे शेयरिंग में वो भी आपको खुद कैलकुलेट करना है। मेथड आपको बोर्ड पे दिखा दी, कैलकुलेशंस एटलीस्ट यू कैन डू ऑन योर ओन। ओके, 10 नंबर, what number must be added to each term of the ratio 9:16 to make the ratio 2:3? क्या ऐड करना चाहिए 9:16 रेशियो में? तो वो 2:3 बन जाएगा। ओके, लेट हम दोनों में 5 ऐड करेंगे, सॉरी x ऐड कर रहे हैं। ओके, सपोज करना है तो हम दोनों में x 9 + x एंड 16 + x करेंगे। अब आपका फिर से इक्वेशन आ जाएगा, याद आपको। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आएगा। 3 9s are 27 plus 3x 32 plus 2x 3x
minus 2x is equals to 32 minus 27. 3 minus 2 will give 1x, that is x is equals to 5. Okay, so 5 should be added to the ratio 9:16 to get 2:3. ओके 5 ऐड करना पड़ेगा. हम देखते हैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए 9 plus 5 and 16 plus 5. 9 plus 5 14 and 16 plus 5 21. अब आप इसको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो डिवाइड बाय 7/7 करना पड़ेगा, दैट इज 2/3 हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रेशियो. ओके, तो दिस आंसर 5 इज करेक्ट ओवर हियर. 5 अगर हम दोनों में ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो 2:3 हमें मिल जाएगा. ठीक है, so this was question number 9 and 10 on the board. Now we will see the 11 number. Number is what number must be subtracted from each term of the ratio 17:33. ओके, जो रेशियो आपको दिया है ओरिजिनली वो है 17:33. उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी तो मुझे नया रेशियो जो है वो मिलेगा 7:15. ओके, सपोज हम दोनों में से x माइनस कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज 17 माइनस x एंड 13 माइनस x. तो यहां से आप सम को खुद कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैरी ऑन करना खुद. ठीक है, 15 विल कम इन द मल्टीप्लिकेशन विद 17 माइनस 6 एंड 13 माइनस x विल कम इन द मल्टीप्लिकेशन विद 7. ओके, यहाँ पे हम लिखना भूल जाते हैं. लेट x शुड x इज सब्ट्रैक्टेड obtain the required ratio. इससे अगले वाले में हम लिखते थे लेट x is added to obtain the required ratio. ओके, यहाँ से आप ये 11 नंबर का सम खुद खत्म कर सकते हो. नाउ वी शैल सी 12 नंबर. 2 numbers are in the ratio 7:11. If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3. Find the numbers. Answer number 12. दो आपके नंबर्स हैं, उनका रेशियो दिया है 7:11. अब आप दोनों में अगर 7 प्लस कर देते हो तो नया रेशियो क्या बन जाता है 2:3. ओके, आपको क्या ऐड करना है दोनों में 7. तो 7 अगर ऐड करने जा रहे हैं तो नया रेशियो बन रहा है 2:3. तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये दो नंबर्स क्या होंगे जो नए हैं. वो क्या नया नंबर बनेगा जो नए रेशियो को 2:3 कर देगा. ठीक है, 7 plus 7 and 11 plus 7. 7 plus 7 is 14 and 11 plus 7 is 18. तो 14:18 अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये रेशियो क्या बन रहा है 7:9. ओके, मतलब ये 14/18 नहीं होना चाहिए, ये कोई और नंबर्स होने चाहिए. तो इसको कोई और नंबर है तो इसका करेक्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दैट आई विल शो यू नाउ. यू कैन सी द रेशियो इज गिवन हियर, नॉट द नंबर्स. 7:11 दिया है तो हम ये हमारा राइट क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 7/11 नंबर्स ही कंसिडर कर लिए थे, लेकिन नंबर्स नहीं है. 7/11 क्या है, रेशियोज है. तो रेशियो के साथ अगर आपको नंबर्स
दिखाना है तो लेट द नंबर्स आर 7x एंड 11x। ओके, हमने क्या किया, डायरेक्टली 7 किसमें प्लस कर दिया था, जो रेशियो दिया है उसमें। रेशियो में नंबर्स प्लस करने से नया नंबर नया रेशियो तो नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल वी डू, वी विल लेट द नंबर्स आर 7x एंड 11x। ये जो 7/11 दिया है वो रेशियो दिया है। ओके, सो 7x में +7 करना है एंड 11x में भी आपको +7 करना है। ओके, दोनों में आप 7 ऐड कर दोगे। अब आप यहाँ से सम को खुद कर सकते हो। 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7x + 7 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 11x + 7। Okay, now you will be able to find out the value of x, and that value you will keep in 7x and 11x respectively. Okay, 21x plus 21 is equals to 22x plus 14. Plus 14 will become minus 14 on the left hand side, and plus 21 will become minus 21 on the right hand side. 7 is equals to x, therefore x is equals to 7। अब आपको x नहीं फाइंड आउट करना है, आपको 7x एंड 11x ऐसे नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। 49 एंड 11x is equals to 11 multiplied by 7, that is 77। ओके, अब इन दोनों नंबर्स का अगर आप रेशियो करोगे तो नया रेशियो जो आपको दिया है 2:3 वो हो जाना चाहिए। हो रहा है? Seven is to 11. Okay, 7 7s are and 7 11s are. This is the answer, 7/11। ये रेशियो आपको मिल गया है जो पुराना वाला है वो। यस, तो 49 and 77 are two numbers which when added by 7/7 will create the new ratio 2/3। okay, आपको ये रेशियो 7/11 मिल जाना चाहिए। ओके, 49/77 करने से आपको ये रेशियो मिल जाएगा, लेकिन 2/3 कैसे मिलेगा, तो 7 प्लस करने से 49 + 7 करूंगी तो क्या होगा 56 एंड 77 + 7 करेंगे तो क्या होगा 84। ओके, 28 2s are and 28 3s are, तो 2/3 ये नया रेशियो है, ये नए नंबर्स है, लेकिन आपको नए नए पुराने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। दिस इज द ओल्ड रेशियो। ओके, ये न्यू रेशियो है एंड दिस इज द ओल्ड। तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से 7/11 जिनका रेशियो होना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने वो आपने कर लिए। न्यू रेशियो वाले नंबर्स आपने फाइंड आउट करने को बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने वेरिफिकेशन के लिए या आपको एक्सप्लेन करने के लिए करके दिखाया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 13। Two numbers are in the ratio 5:9. On subtracting 3 from each, the ratio become 1:2। तो ये वाला जो नंबर है 13 नंबर वो आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जहाँ पे +7 किया वहां पे आपको -3 करना है, बिकॉज यू आर गिवन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में से आपको -3 करना है एंड देन न्यू रेशियो के साथ आपको उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये 13 नंबर का सम आप अपने हिसाब से खुद ट्राई करोगे एंड सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करोगे। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चंस का मैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8A को इनकम्प्लीट रहने देती हूँ, बिकॉज द रेशियो is a new concept for all of you,
So it will take time for all of you to understand the ratio and its exercises, its questions that we have solved and we have not solved. So I am giving you enough time to solve them, with ending up our lecture on 30 number question for today. The remaining questions we will solve in the next lecture. Till that, you just keep watching the video and keep trying to solve the sums that we have not discussed in the classroom. Okay, I hope you all have understood the concept of ratio, and thank you everyone for watching my video.